Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. Today, the video is for degree students for the upcoming examination, Advanced Accounting, all universities in Telangana. And already I have uploaded some chapters like dissolution of a firm and valuation of shares, and also issue of shares related questions with along with solutions. So already one video will be uploaded very recently. That is uh, admission of a partner, and now the video is for retirement of a partner. So in this video, with a simple sum, I'll explain you how to do retirement problem, which is for 12 marks for your upcoming exam. So here, retirement of a partner. In the previous video, we have discussed that there will be partners where one new partner will be admitted. In this situation, what happens is, in retirement of a partner, let us assume that there are three partners A, B, C, and if any partner wants to retire from the firm, that retirement may be accepted only with the mutual consent of the remaining partners. So, retirement may be due to the reasons such as, one is retirement due to some age factor, and due to age some persons may retire, and second one is that retirement is due to conflicts between the partners. If any conflict raised between any partners, if any partner is not satisfied with the business, he may go for retirement. So in this retirement, same, we have to prepare revaluation account, partners capital account, as well as balance sheet. So while we are going with revaluation account, one thing you have to keep in your mind that the in revaluation account the same happens, it is repeated same which we have done in admission of a partner. So revaluation accounts, sir, first we have to prepare, and second thing is that we have to prepare partners capital account in this, and partners capital account, if the partner is going with fixed capital method, so there comes partners current account also. And next is balance sheet. So retiring partner situation, at the time of retirement partner के पेमेंट के फैक्टर्स तीन रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में. पहला सिचुएशन है, if the partner may demand for total payment in one single payment. तो सिंगल पेमेंट में अगर पार्टनर पूछा मेरा पैसा टोटल सेटल कर दो, तो इस हिसाब से सेटल हो जाएगा. टोटल कैश विल बी पेड टू द पार्टनर इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक और एनी ड्राफ्ट. सेकेंड थिंग इज दैट रिटायरिंग पार्टनर को जो है उनका पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा. जैसा कि फॉर एग्जांपल फॉर रिटायरिंग पार्टनर द अमाउंट इज 2 लाख रुपी, द फर्म कैन पे दिस 2 लाख रुपी अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलमेंट. एंड नेक्स्ट इज दैट थर्ड वन इज पार्शियल पेमेंट. पार्शियल पेमेंट का मतलब होता है थोड़ा पेमेंट पे करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता, लोन अकाउंट में. ये तीनों सिचुएशंस में अगर नहीं है तो आप समझना कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पैसा नहीं दे जा रहा है, अभी फ्यूचर में इसको पेमेंट मिलेगा. एंड वी हैव टू क्रिएट ए पार्टनर लोन अकाउंट फॉर दिस. वी हैव टू क्रिएट व्हाट? पार्टनर लोन अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल the payment factors for the retiring partner may be, one is total payment may be made, second it can be made in installments, and third it can be made both partial as well as the remaining balance amount will be created as loan account. तो अभी चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पार्टनर्स रिटायर होते टाइम पे बुक्स फिर से चेंज करना पड़ता है, बुक्स क्लोज करना पड़ता है, इसलिए अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर करते हैं. इन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल गेट टू नो what are the various changes in assets and liabilities happened. यहाँ पे asset increase हुआ या decrease हुआ ये मालूम हो जाता revaluation account में, profit और loss आता. उसके बाद partners capital और current account करते. next balance sheet. चलो I'll explain you one simple sum which is useful for your examination. Right.
So we are starting with retirement problem. In this problem, I'll show you how to do the problem starting with revaluation account, partners capital account as well as balance sheet. So here the question will be displayed on the screen एंड एक ही क्वेश्चन को तीन केसेस में आप ऑलरेडी आपको समझाया कि पार्टनर को जो है सेटलमेंट करते टाइम पे रिटायरमेंट के टाइम पे पहला है फुल पेमेंट सेटलमेंट वन टाइम का है, दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट है एंड और एक है लोन अकाउंट क्रिएट करना है, यानी पार्टनर को इमीडिएट पैसा नहीं मिलता है तो लोन अकाउंट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है पार्शियल पेमेंट होता है एंड पार्शियल लोन अकाउंट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं पहले आपको जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले दिख रहा ये क्वेश्चन जो है टोटल सॉल्व करके लगाता हूँ एंड यही क्वेश्चन अगर थोड़े डिफरेंट केसेस में पार्टनर के जो पेमेंट के स्कीम है अगर उसमें कुछ बदलाव आ गया क्वेश्चन में उसको कैसा हैंडल करते वो भी बताता हूँ। चलो पहली बात तो क्वेश्चन नंबर ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, Arun, Tarun and Varun were carrying on a business in a partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। यहाँ पे अरुण वरुण तरुण तीनों पार्टनर्स है, बिजनेस कैरी कर रहे पार्टनरशिप फर्म का एंड उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो है 5:3:2 एंड ऑन 31st December 2003 their balance sheet is given below। तो 31st December 2003 के दिन उनका बैलेंस शीट दिया गया है एंड capital accounts Arun 1 lakh, Tarun 60, Varun 35 and trade creditors 33,880 and outstanding expenses 2,745। freehold premises 75, furniture and fitting, stock, debtors, bills receivable and cash at bank। On the following terms वरुण रिटायर्ड, वरुण का रिटायरमेंट हो गया तीनों पार्टनर्स में से एंड ये रिटायरमेंट जो है राइट सो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन में एक अमाउंट कट करके मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि ये टोटलिंग वहां पे दे दिया हो ना, सो दैट्स द रीजन एक बार चेक कर लेना है। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस, look at the question, on the following terms Varun retired on 31st December 2003, freehold premises be increased by 20%। he is saying that freehold premises increase हो गया 20%। तो freehold premises asset और liability, it is an asset। देखिए अगर थोड़े लोग जो अकाउंट्स में बहुत ही डल है वो असेट पहचान नहीं पा रही है लायबिलिटी, तो देख लेना चाहिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एसेट और लायबिलिटी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी शुड बी इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ा दो एंड बताया फर्नीचर एंड फिटिंग डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग भी कितना 10% डेप्रिशिएट करने के लिए बोला एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन ट्रेड डेटास बी क्रिएटेड, यानी डेटास के ऊपर एक प्रोविजन बना दो बोला 5% का और they agreed value of the firm goodwill is 60,000, यानी टोटल फर्म का गुडविल हो गया 60,000 रुपया। द अमाउंट फाइनली ड्यू टू वरुण बी पेड इमीडिएटली, यहाँ पे बता रहा कि भाई वरुण जो रिटायर हो रहा है उसको इमीडिएटली टोटल पेमेंट करना चाहिए राइट। उसके लिए अरुण एंड तरुण ब्रिंग 20,000 ईच टू फैसिलिटेट पेमेंट, यानी रिटायर जो हो रहा पार्टनर वरुण उसको इमीडिएट पेमेंट होना चाहिए एंड ही डिमांड भी कर रहा, तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स है अरुण और तरुण दोनों 20-20 हजार रुपया, यानी ईच पार्टनर इज ब्रिंगिंग 20,000 रुपीज टू मेक द पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर वरुण। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ए न्यू बैलेंस शीट बता रहा है। चलो बेटा जो पहले बात आती है यहाँ पे राइट, लुक एट हियर, एसेट्स अगर कम हो गया तो लायबिलिटी डेबिट साइड में आएगा, लायबिलिटी बढ़ गया तो डेबिट में आएगा, एसेट इंक्रीज हो गया या लायबिलिटी घट गया तो क्रेडिट साइड में आएगा। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात है। सो यहाँ पे ओनली इन रिवैल्यूएशन अकाउंट वी विल टेक द असेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन जो भी इंक्रीज हुआ है एंड जो भी डिक्रीज हुआ है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में वी विल टेक कंसीडर।
तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिए आप, फ्री होल्ड प्रेमिसेस इंक्रीज्ड बाय 20%। फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। तो कहाँ पे आएगा असेट इंक्रीज हुआ? तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाय फ्री होल्ड प्रेमिसेस, राइट। फ्री होल्ड प्रीमिसेस इंक्रीज हो गया 20%। या फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितना था? 75,000 था, तो 75,000 का 20% इंक्रीज है। तो 75,000 इंटू 20%, 15,000 इज द इंक्रीज ऑफ फ्री होल्ड प्रीमिसेस, राइट बेटा। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर और फिटिंग क्या हो गया? डेप्रीशिएट हो गया। कितना हो गया? 10%। फर्नीचर एंड फिटिंग इज डेप्रीशिएटेड बाय 10% बेटा। तो 10% कम हो गया। जब असेट कम होता है डेबिट साइड लेना चाहिए। तो अभी लिखना है फर्नीचर एंड फिटिंग्स कम हो गया है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स इज हाउ मच? 22,550। 22,550 का 10% यानी 2255 हैज बीन डिक्रीज्ड, राइट सर। नेक्स्ट इज स्टॉक का कुछ दिया नहीं इंफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट में देखिए, पहले फ्री होल्ड प्रीमिसेस का हो गया इंक्रीज बाय 20% एंड फर्नीचर एंड फिटिंग डिप्रिशिएट हुआ, क्रेडिट साइड में ले डेबिट साइड में ले लिए। एंड जो है और एक बात बताया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन टोटल डेटास। डेटास के ऊपर 5% का प्रोविजन। यहाँ पे डेटास कहाँ पे दिख रहा है आपको? असेट साइड में दिखेगा। 29,600 का 5% प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बताया यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर डेटास। The value of debtors is 29,400 into, he is saying 5%. We have to create, right? 29,600 है बेटा। 29,600 का 5%, right? 29,600 into 5%, 1480. This is the reduction in debtors. Next is the, right, उतना ही है और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। मैं बता रहा हूं फिर से, ये पॉइंट आपको रिपीट कर रहा हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ असेट लायबिलिटी जो भी है उसका इंक्रीज या डिक्रीज यही आता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। चलो अब देखेंगे 15,000 क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड इज हाउ मच? 15,000 रुपीज। एंड व्हाट अबाउट डेबिट साइड? डेबिट साइड इज 2255 प्लस 1480, 3735 हो गया डेबिट का टोटल। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। सो 15,000 रुपीज माइनस 3735, इट इज 11,265। दिस इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को जो है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स। अब देखिए बेटा, अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इट इज प्रॉफिट, and debit side is more then it is loss. So revaluation profit, right? So revaluation profit is how much? 11,265, and this profit is to be distributed to the partners, that is Arun, Tarun and Varun. So Arun, Tarun and Varun, यहाँ पे जो है सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट सर? అరే ఆన్ చేసినావా? So here revaluation profit 11,265. This is a revaluation profit. It should be shared in the ratio of 5:3:2. 11,265 into 5 divided by 10 हो गया 5। अब देखिए 11,265 into 5 by 10, 11,265 जैसा कि तरुण का हो गया 11,265 into 3 by 10 एंड वरुण का हो गया 11,265 into 2 by 10। देखिए बेटा यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है?
11265, 11265 into 5 divided by 10, it is 5632.5. तो जब 0.5 दिया है तो अब राउंड अप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इतना ही ले सकते हैं अपन 5632. आई एम टेकिंग 5632. अब नेक्स्ट है 11265 into 3 divided by 10, 3379, राइट. सो 79.5 है तो नियर नंबर है, मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे 80 ले लेता मैं. चलो नेक्स्ट है 11265 into 2 divided by 10 which is 2253, 2253. सो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पैटर्न. नाउ लेट्स टोटल बोथ द साइड्स. द हाईएस्ट टोटल इज 15,000 दोनों साइड में. 15,000 आ गया टोटल, राइट. नेक्स्ट थिंग इज दैट what we have to do is we have to go with partners capital account. तो partners capital account जाएंगे एंड partners capital account में रिटायरिंग पार्टनर का जो भी पेमेंट देने का मेथड है वो कैसा पेमेंट देते हैं, विल नो अबाउट दैट इन डिटेल, राइट. Right, here we'll start with partners capital account, and for the pro forma will be particulars Arun, Tarun, Varun, particulars Arun, Tarun and Varun respectively. So here you can look into the question whereby which in the balance sheet liability side the capital amounts are appearing. Arun capital is 1 lakh, Tarun capital is 60,000 and Varun capital is 35,000. So here these three capitals or liabilities, it has a credit balance, so it should be started in the credit side. राइट सर, क्रेडिट साइड से शुरू करना चाहिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो हियर अरुण कैपिटल इज 1 लाख रुपी एंड तरुण कैपिटल इज 60,000 and Varun is 35,000, right. First you have to write this balance brought down. Next, previously we have done with revaluation account. And revaluation account there is a profit, yes. So here we have got profit, right. So here by balance brought down first अपने को लिखना है. उसके बाद जो है प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन में वो क्रेडिट साइड में शेयर होगा सर. बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड में शेयर कर लो. कितना है 5632 अरुण का है एंड वरुण का है, तरुण का है 3380 एंड वरुण का है 2253. ये है कैप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. नेक्स्ट इज लायबिलिटी साइड में चेक करिए, अगर कोई रिजर्व का दिखा तो वो रिजर्व जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनके रेशियो में. लेकिन ये क्वेश्चन में जो है रिजर्व्स नहीं दिया. याद लगा लो बेटा, रिजर्व्स जो है अगर लायबिलिटी में अपीयर हुआ तो रिजर्व्स पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे रिजर्व्स नहीं है ये क्वेश्चन के अंदर, तो नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिजर्व्स हियर. नेक्स्ट इज व्हेन इट कम्स टू राइट, एक बार देख लीजिए असेट साइड में P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के भी देता. अगर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लॉस है, टोटली लॉस. ये लॉस डेबिट साइड में पार्टनर्स को शेयर करना चाहिए अगर असेट साइड में आपको P&L अकाउंट दिखा तो. अगर मानो कि P&L अकाउंट आपको लायबिलिटी साइड क्वेश्चन में दिखा तो सेम क्रेडिट साइड में शेयर करना चाहिए पुराने रेशियो में. चलो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट थिंग. अब पहली बात हमेशा याद लगा लो, ब्रॉट डाउन बैलेंस के बाद प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन लॉस बिल्कुल लिखना है, रिजर्व्स है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, राइट. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि भाई द अमाउंट फाइनली ड्यू टू वरुण बी पेड इमीडिएटली, यानी वरुण को जो पैसा मिलने वाला है वो इमीडिएट सेटलमेंट करना चाहिए बोल के बताया. सो देखो बेटा यहाँ पे जो वरुण का पैसा है वो कितना है पहले देखेंगे अपन. 35,000 है और 2253 है. सो 35,000 प्लस 2253 यानी वरुण को जो है 37,253 अमाउंट देना है एंड ये इमीडिएट सेटलमेंट होगा. एंड इसके लिए अरुण एंड तरुण ब्रिंग
इन 20,000 ईच टू फैसिलिटेट पेमेंट, यानी इसका पेमेंट देने के लिए, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट देने के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स जो है खुद एक एक जनों 20-20 हजार रुपए लेके आ रहे। तो क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए बाई बैंक अकाउंट, अरुण का है 20,000 अरुण इज ब्रिंगिंग एंड वरुण इज ब्रिंगिंग हाउ मच 20,000, ये याद लगा लो। नया पुराने पार्टनर्स को जो है रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने के लिए पुराने पार्टनर्स यहाँ पे पैसा लेके आ रहे 20,000 ईच, राइट। नेक्स्ट इज नाउ विल सी द एनी गुडविल। गुडविल का देखना पड़ेगा सर, यहाँ पे गुडविल जो है क्लियर कट है कि भाई द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 60,000, गुडविल कितना है 60,000 है, राइट। अब अपने को करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुडविल हमेशा जो है गेनिंग रेशियो फर्स्ट फाइंड आउट करना है एंड जो गेनिंग पार्टनर्स है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देते। अब ये क्वेश्चन में जो है अरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कितना हिस्सा हो रहा है, ये फर्म का गुडविल है 60,000। अब वरुण रिटायरिंग पार्टनर है, इसका हिस्सा कितना है देखेंगे 60,000 इंटू 2/10 इज द शेयर ऑफ वरुण। सो अब 006 to 12, तो कितना हो गया 12,000 रुपीज हो गया किसका, वरुण का शेयर ऑफ गुडविल। अब ये वरुण का शेयर ऑफ गुडविल जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का पहले देखेंगे। अब अरुण है, राइट सर, एंड तरुण है। देखिए बेटा अरुण का ओल्ड रेशियो है 5/10, ओके, एंड न्यू रेशियो 3:2 बोल के बोला उन्हें। न्यू रेशियो इज हाउ मच सर इन द गिवन क्वेश्चन आफ्टर रिटायरमेंट, उनका रेशियो होगा 3:2। किनके बीच में रेशियो होगा, अरुण एंड तरुण के बीच में रेशियो होगा 3:2। तो अरुण का रेशियो है पुराना ओल्ड रेशियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये है फॉर्मूला। Gaining ratio, once again I am writing here, gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. Now first of all we'll check it out. Arun is the old partner, Arun का new ratio है 3:2 यानी 3/5 and old ratio है 5/10। Now cross multiply कर लो, 3 into 10 30 minus 5 is 25 divided by 50, यानी कितना हो गया 5/50। एंड उसके बाद तरुण, तरुण का कितना है सर 2/5 इज द न्यू रेशियो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे दिया 2:3 बोल के, 3:2, तो 3/5 एंड 2/5 रेस्पेक्टिवली। तो तरुण का न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है तरुण का 3/10। आप मल्टीप्लाई कर लो तो 20 आ जाएगा, 2 10s are 20 माइनस 5 3 is 15 डिवाइडेड बाई 50 आ गया 5/50। यानी यहाँ पे जो है माइनस में नहीं आया प्लस में आया, इसका मतलब क्या है दोनों भी गेन हो रहे। टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स जो अरुण एंड तरुण है दोनों भी गेन हो रहे। तो गेनिंग पार्टनर्स को जो है गुडविल गेनिंग पार्टनर्स देना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को। समझ में आया सर? ओके, गेनिंग पार्टनर्स किसको देना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। समझ में आया? वेरी गुड। सो हियर गुडविल यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बाई अलग से, बाई जो है कौन दे रहा है, एक अरुण, अरुण कैपिटल बाई तरुण कैपिटल बोल के लिख रहा हूं मैं। गुडविल के जगह we have to write the old partner's name, that is Arun capital and Tarun capital। अब इतना हो गया, वरुण का हिस्सा गुडविल का 12,000 रुपए। सो 12,000 अरुण जो है 12,000 गुडविल में अपना हिस्सा क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे दोनों का गेनिंग कितना हो गया 5 and 5, 5 and 5 का मतलब होता है 1:1 यानी इक्वल। अब ये 12,000 रुपए जो है
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स जो है, रिमेनिंग पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं। अब जो है गुडविल, सो यू कैन राइट हियर 6000 एंड 6000, 12,000 हो गया, राइट। अब यही डेबिट साइड में लिखना है टू वरुण कैपिटल, वरुण इज रिसीविंग इट, सो टू वरुण कैपिटल it is debited from Arun account 6,000 rupees and Tarun account 6,000 rupees। ये गुडविल का है, राइट सर। ये है कैलकुलेशन पार्ट गुडविल का था, नोट इट डाउन। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ये गुडविल का यहां से एरेज कर रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट अरुण कैपिटल, ये गुडविल का भी हो गया। नाउ लेट्स टोटल द अमाउंट पेएबल टू वरुण। यहाँ पे वरुण इज रिटायरिंग, तो वरुण का क्रेडिट साइड बैलेंस कितना है देखेंगे। 35,000 प्लस 2253 प्लस 6,000 प्लस 6,000, 49,253 रुपीज। एंड यहाँ डेबिट कुछ नहीं है, तो वरुण को देने का पैसा है 49,253 टू फर्स्ट फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट के लिए इतना देना पड़ेगा। अब ये 49,253 रुपीज वरुण को टोटल पेमेंट देना है। इसके लिए ये जो अरुण एंड तरुण है, ये 20,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली दे हैव ब्रॉट टू सेटल हिज अमाउंट। नाउ राइट, in the debit side we'll write it as, this is very important beta, I'm writing it with another color pen, to बैंक अकाउंट। जब रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दिया जाता है तो डेबिट साइड में लिखना है टू बैंक अकाउंट पेमेंट। क्या बोल के लिखना है, पेमेंट, ओके, राइट। सो कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं अपन, 49,253। सो टोटली अमाउंट पे कर दे रहे, टोटल अमाउंट लिखना है 49,253 आर पेइंग टू द रिटायरिंग पार्टनर। नाउ लेट्स सी द टोटल्स। अरुण का है 1 लाख रुपी प्लस 5,632 प्लस 20,000, कितना हो गया, 125,632, 125,632। सो 125,632 माइनस 6,000 रुपीज, जिसका टोटल उसके पास है। अरुण का टोटल हो गया 125,632 क्रेडिट का, उसमें से डेबिट का 6,000 माइनस कर दो, 119632। सो 119632, राइट। नेक्स्ट इज 60,000, 3380 एंड 20,000, ये हो गया 83,380 माइनस 6,000, 77,380, ओके। अब रिटायरिंग पार्टनर का टोटल हो गया 49,253 एंड यहाँ हाईएस्ट टोटल लिख लेते हैं अपन, 125,632 83,380 49,253, राइट सर। अब यहां तक तो बात हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट, डेबिट साइड में लिखना चाहिए टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ओके सर। बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिखना है, रिमेनिंग पार्टनर्स का टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है बेटा, राइट। एंड जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैंक अकाउंट पेमेंट लिख देते हैं एंड रिमेनिंग पार्टनर्स का कैरी डाउन बैलेंस लिख लेते हैं, राइट। फर्दरली we'll go with the next thing. Okay, so यहाँ पे ये एग्जाम्पल छोटे से 2-3 केसेस समझा देता हूं मैं, आप अच्छे से समझ जाओ बेटा। एक केस क्या है बोले तो, अगर ये क्वेश्चन में क्या दिया, रिटायरिंग पार्टनर को जो है फुल पेमेंट एक ही बार मिल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को फुल सेटलमेंट जब हो रहा है तो व्हाट द रिमेनिंग पार्टनर, जो पुराने पार्टनर से वो लोग पैसा लेके आ रहे ताकि रिटायरिंग पार्टनर को टोटल पेमेंट दे सके।
तो तब क्या होता है, जो जब पैसा लेके आ रहे पुराने पार्टनर्स, तो बैंक अकाउंट बोल के लिखना है जो जितना पैसा लेके आ रहा है। उसके बाद जो है बेटा डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट बोल के पेमेंट बोल के लिख देना है, जो रिटायर हो रहा है उसके कॉलम में लिख देना है, राइट। ये एंड अगर समझो कि उन्हें बोला कि पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, रिटायरिंग पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा है, लोन अकाउंट क्रिएट करो बोला, तब जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ टोटल्स करके जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 49,253 है, यही टोटल यहाँ पे टू वरुण लोन अकाउंट बोल के लिख देना है, अगर लोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा तो। थर्ड पॉइंट इज दैट अगर थोड़ा पेमेंट दे रहे, थोड़ा जो है लोन क्रिएट कर रहे, तो जितना पेमेंट दे रहे उतना टू बैंक अकाउंट बोल के लिख दो, एंड बचा कुचा जो अमाउंट है, यानी ये टोटल में से जितना पेमेंट दे रहे वो हटाने के बाद जो बचा वो रिटायरिंग पार्टनर जो रहता है उसके नाम से टू वरुण लोन अकाउंट बोल के लिख देना चाहिए। सो डोंट कंफ्यूज, ये नॉर्मल सम है, मैं जो आपको बोर्ड पे बताया। अगर मैं समझा रहा हूँ कि अगर रिटायरमेंट में पेमेंट्स मेथडोलॉजीज में चेंजेस आए, यानी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करते टाइम पे चेंजेस आए, तो ये बात आप याद लगा लेना पड़ता, राइट बेटा। नेक्स्ट विल मूव विद द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यहीं पे कर देता हूं, राइट। सो हियर liabilities rupees, assets rupees. The heading is balance sheet of new firm as on. यहाँ पे बैलेंस शीट में कभी डेबिट एंड क्रेडिट नहीं रहेगा, ओके। द डेट इज 1st January 2004। लायबिलिटीज कैपिटल्स लिख लेंगे। कैपिटल्स यहाँ पे कौन पार्टनर्स रह गए, अरुण एंड तरुण दोनों ही रह गए, एंड वरुण रिटायर हो गया, एंड वरुण को टोटल पेमेंट भी मिल गया, एंड अरुण का कैरी डाउन बैलेंस कितना है 119632, एंड तरुण का है 77380। अगर मानो कि वरुण को पेमेंट नहीं मिला, वरुण रिटायर हो गया, तब वरुण लोन अकाउंट बोल के लायबिलिटी में बताना जरूरी है। नेक्स्ट ये कैपिटल्स हो गए, एक का है 119632 प्लस 77380, 197012। ओके बेटा। नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिटर्स, इसके बाद आएगा ट्रेड क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स में कुछ बदलाव आया क्या, एडजस्टमेंट्स में कुछ नहीं है, तो ऐसे लिख दो 33880। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2745, राइट बेटा। अब असेट साइड में आते हैं, देखते हैं कि भाई और क्या है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, freehold premises, any changes in freehold premises? yes, 75,000 था, तो 20% जो है इंक्रीज हो गया, 75,000 इंटू 20%, यानी 50,000 इंक्रीज हो गया, ओके बेटा। तो 75,000 प्लस अप्रिसिएशन 15,000 हो गया 90। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर की बात, फर्नीचर जो है इट इज 22,550, 22,550, एंड यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू गिर गया 10%, 2255। सो 22,550 माइनस 2255 20295। चलो इसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कुछ चेंजेस आए क्या, देयर इज नो चेंजेस इन स्टॉक, स्टॉक एज इट इज लिख दो। वैल्यू कितना है स्टॉक 69
29,840. नेक्स्ट ट्रेड डेटास, यहाँ पे डेटास में चेंजेस आया. सो डेटास पुराना कितना है 29,600 है. अब डेटास में चेंजेस आया कितना, प्लस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, राइट. Provision for bad and doubtful debt 29,600 into 5%, 1480. So 1480 ये हटा देंगे उसमें से 1480, राइट. 29,600 minus 1480, 28,120 rupees. ओके, राइट. नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 10,000. बिल्स रिसीवेबल कितना है 10,000 रुपीज है. उसके बाद है कैश एट बैंक. सर यहाँ पे प्लेस नहीं रहने की वजह से मैं इसका अमाउंट या समझा रहा हूं आपको, ठीक है. सो नोट इट डाउन, कैश एट बैंक का यहाँ पे प्लेस नहीं रहने की वजह से यहाँ पे मैं समझा रहा हूं कैसा है. यहाँ कैश एट बैंक जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द अमाउंट इज हाउ मच 24,635 बैलेंस है. अब दोनों पार्टनर्स अरुण एंड तरुण 20,000 लेके आए बिजनेस के अंदर. सो 20,000 ईच, टोटल हो गया 40,000 प्लस 24,635, 64,635 हो गया टोटल तीनों का अमाउंट. अब इसमें से जो है रिटायरिंग पार्टनर को यानी वरुण को पेमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे 49,253. ओके, सो इसमें से 49,253 जब दिया तो 15,382 is the remaining balance. I am writing here 15,382. Understood, sir? This is the balance of cash. I am writing here also. No need to confuse. 24,635 plus 20,000 minus 49,253 ये आया. देखिए कैश एट बैंक फिर से यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बैलेंस शीट का अमाउंट है एंड पुराने पार्टनर्स अरुण तरुण दोनों 20-20 हजार रुपए लेके आए, टोटल इतना हो गया. इसमें से रिटायरिंग पार्टनर वरुण को जो है 49,253 देने के बाद 15,382 आया. अब बोथ द साइड्स टोटल देख लेंगे एक बार, राइट. सो टोटल्स इज 197012 प्लस 33,880 प्लस 2745, 233,637, 233,637. The total says 233,637, 233,637. Okay, sir? Right. So अभी look here, ये हो गया प्रॉब्लम. ओके, नथिंग टू वरी अबाउट दिस. एंड अगर किसी को जो है कुछ डाउट है, ये टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बैलेंस शीट का अलग है, डिफरेंट है. सो वॉट एवर वी डिड इज राइट, सो फोकस ऑन दैट. टोटल सम फोकस करो, कहीं स्किप करने का नहीं है, वीडियो समझ में आ जाएगा. एंड डियर स्टूडेंट्स, once again subscribe to my channel, like and share to more people who are in need. क्योंकि थोड़े बच्चे जो कॉलेज को नहीं जाते एंड जो काम कर लेके पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, उन तक पहुंचना चाहिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. फिर मिलेंगे, बाय.